سنت ابراہیمی کی ادائیگی، گلی گلی اللہ اکبر کی صدائیں، بڑی عید کی بڑی خوشیاں، جذبہ ایثار کے اظہار کے لیے جانور قربان، اطاعت اسماعیلی کی یاد تازہ ہو گئی۔ آج نیوز کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید الاضحیٰ مبارک۔ ہمارے گھر میں چار پانچ دن سے بکرا آیا ہوا تھا، ہم اس کے ساتھ دل لگا کے کھیلتے تھے۔ والدہ وہ آج اس کو قربانی دی، ہمیں آج اس کی قربانی ہو گئی۔ ہمیں دکھ بھی بہت ہو رہا ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ اللہ کی راہ پہ قربان ہوا ہے۔ بڑی عید پر چھوٹوں کا جذبہ ایثار، اللہ کی راہ میں دوست کو قربان کرنے کو تیار، شوق سے جانور لائے، ناز نخرے اٹھائے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو بچے بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے پیچھے نظر نہ آئے۔ قربانی کے بعد نت نئے پکوان، خواتین کا کڑا امتحان، بریانی، قورمے، کڑھائی اور بھنا گوشت گھر والوں کی ایک سے ایک فرمائش نے آزمائش میں ڈال دیا۔ خواتین پکا پکا کر تھک گئیں، گھر والے کھا کھا کر نہیں تھکے۔ جانور زمین پر، قصائیوں کے نخرے اور ریٹ آسمانوں پر۔ عید قرباں پر قصائی وی آئی پی بن گئے۔ پہلے دن جم کر کی کمائی، اناڑیوں کی جانوروں نے خوب درگت بنائی۔ اسلام آباد میں ٹوکن سسٹم متعارف، اپنے نمبر پر آئیں، جانور کٹوائیں، فکس رقم ادا کریں اور گوشت لے کر گھر جائیں۔ لوگ قربانی کا فریضہ نبھا رہے ہیں، انتظامیہ صفائی کا فریضہ نبھا رہی ہے۔ ملک بھر میں علائشیں اٹھانے کا کام جاری۔ کراچی میں پی ٹی آئی رضاکار بھی میدان میں۔ لاہور میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ پشاور میں 400 اہلکاروں پر مشتمل ٹاسک فورس متحرک۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا پشاور کو پھولوں کا شہر بنانے کا عزم۔ کوئی بھی قوم اثار و قربانی کے جذبے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا عید الاضحیٰ پر قوم کے نام پیغام۔ صدر ممنون حسین اور مسلح افواج کی جانب سے بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آرمی چیف پاکستان میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا گو۔ سعودی عرب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعزاز میں شاہی عشائیہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے میزبانی کی۔ سپہ سالار کو حج کی ادائیگی پر مبارکباد۔ علاقائی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی کوشش کا اعلان۔ کہتے ہیں ڈاکٹر عافیہ کی مشکلات اور ان کے خاندان کے کرب کا احساس ہے، البتہ قانونی ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ شیخ رشید کا پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے رابطے کا مشورہ۔ آج رانا مبشر کے ساتھ میں بیک ڈور رابطوں کی تجویز رکھ دی۔ محکمہ ریلوے میں بہتری لانے کا اعلان۔ پورے نظام کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تبدیلی لانی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، جو کرے گا وہ اپنی جگہ پھر ڈھونڈ لے کسی اور صوبے میں۔ جسے کرپشن کرنی ہو دوسرے صوبے میں چلا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دو ٹوک اعلان۔ کام کام اور صرف کام کو مقصد قرار دے دیا۔ لاہور میں یتیم بچوں سے ملاقات، تحائف تقسیم کیے۔ سڑک پر ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکاروں سے بھی عید ملنے جا پہنچے۔ سونمیانی ہور میں ماہی گیروں کی کشتی بے رحم لہروں کی نظر ہو گئی۔ 2 افراد ڈوب کر جاں بحق، 13 کو بچا لیا گیا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے بڑی عید کی، بڑی خوشیوں کی۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے راہ خدا میں جانور قربان کیے۔ آج کے دن سب ایک ہو گئے۔ عزیز اور رشتہ داروں میں گوشت تقسیم کیا گیا۔ اہل وطن کو آج نیوز کی جانب سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں
बहुत बहुत मुबारक हो। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गली गली अल्लाहू अकबर की सदाएं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर अल्लाह के हुजूर जानवर कुर्बान। सुबह का आगाज नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाअत से हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसके बाद शुरू हुआ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला। हस्बे तौफीक हर शख्स ने अपना जानवर राह खुदा में कुर्बान किया। ऊंट, बैल, गाय, बछिया, दुम्बा, बकरा सबकी कुर्बानी हुई, जिसके बाद गोश्त की तकसीम का अमल शुरू हुआ। कुछ ने ईद उल अज़हा के पहले रोज कुर्बानी की तो बाज ईद के दूसरे और तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद तीसरा मरहला आता है लजीज पकवानों का। किसी को टिक्का बोटी खानी है तो कोई बिरयानी का दीवाना है, कोई चापे खाने की जिद कर रहा है। मेरी मम्मा मजे मजे के खाने बना रही है। नाश्ते के बाद मैंने कुर्बानी होते हुए देखी और आज मैं कलेजी खाऊंगा। बिरयानी बनाएं, कोरमा पकाएं, टिक्का बोटी करें या फिर चापे भूनने पर वक्त लगाएं। बेटे की अपनी फरमाइश तो बच्चों के अब्बू की अपनी पसंद। कुर्बानी के बाद पकवान खवातीन के लिए कड़ा इम्तिहान। कबाब बनाए हैं और सबके मेहमानों के लिए खाना वगैरह तैयार किया है। बस ये थोड़ी सी मुश्किल होती है कि बच्चे तरह तरह की चीज़ों की फरमाइशें कर रहे होते हैं, ये पकाएं वो पकाएं। एक तरफ बच्चों को भी देखना होता है, एक तरफ कुर्बानी की गोश्त वगैरह बना रही होती हैं, दूसरी तरफ बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रही होती हैं कि बच्चे भी जिद कर रहे होते हैं मम्मा ये बनाए मम्मा वो बनाए। बड़ी पर मुतालबात भी बड़े होते हैं। कोशिश होती है कि इनकी पसंद का हर आइटम मौजूद हो। नाश्ते के बाद मैंने कुर्बानी होते हुए देखी और आज मैं कलेजी खाऊंगा। मेरी मम्मा मजे मजे के खाने बना रही है। खानों की फरमाइश जरूर करें, लेकिन गोश्त खाते वक्त हिफ्ज़ान सेहत का भी ख्याल रखें, कहीं फरमाइश आजमाइश न बन जाए। बड़ी ईद पर बच्चे वालिद के हमरा बड़े शौक से जानवर खरीद कर लाए, उसे प्यार से रखा और फिर अपने प्यारे जानवर को नमनाक आंखों से कुर्बान होते भी देखा। बच्चों के इस जज्बे पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है। ईद उल अज़हा पर बच्चों और जानवरों का साथ इस त्योहार को मेले का रंग दे देता है। ईद उल अज़हा की आमद हुई तो गली गली जानवर नजर आने लगे। बच्चों ने अपने प्यारे जानवरों की खिदमत में दिन रात एक किए और फिर ईद उल अज़हा का दिन आया। जानवर अल्लाह के हुजूर कुर्बान किए जाने लगे। मेरे पास बैल था, 4 दिन से हमने लिया हुआ था, हमें आज उसकी कुर्बानी हो गई, हमें दुख भी बहुत हो रहा है। हमारे घर में 4-5 दिन से बकरा आया हुआ था, आज उसको कुर्बानी दी, अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, हमें बहुत दुख हो रहा है। बच्चों ने अपने अजीज जानवरों को नमनाक आंखों से अल्लाह की राह में कुर्बान होते देखा। ऊँट को हमने पाला हुआ था और वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है अब मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। आज हमने गाय काटी है, हमें बहुत दुख हो रहा है। हमने उसके साथ बहुत खेला लेकिन वो आज कट गई। बच्चों का कहना था कि ईद उल अज़हा हमें रब पाक की हुक्म पर अपनी अजीज तरीन हस्ती को भी कुर्बान कर देने का दर्ज देती है। जी हाँ, कुर्बानी तो हो गई, अब है ख्वाबों की बारी। मुल्क भर में गोश्त के मुख्तलिफ पकवान बनाए जा रहे हैं और मज़े ले लेकर खाए जा रहे हैं। कराची वाली ईद का पहला रोज़ किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं नुमाइंदा आज फैज़ान जलील से। फैज़ान, कराची वालों ने ईद पर पकवान की क्या तैयारी कर रखी है? आज बिल्कुल ईद उल अज़हा का पहला रोज़ शहरियों ने दिन भर तो गुजारा कुर्बानी में, शाम को तफरी मुकामात का रुख किया और अब जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम जो है वो एक फैमिली के घर पर मौजूद हैं। हम आपको लेके चलते हैं किचन में और देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कौन कौन से जो है वो पकवान तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। अच्छा बताइएगा कौन कौन से आज पकवान बना रहे हो, ईद का आज का दिन का वक्त कैसा गुजरा और क्या क्या तैयारी की जा रही है? बहुत ज़्यादा, क्या पूरे सुबह से उठे ये टाइम आ गया है और अभी हमारे मेहमान आए हुए हैं, घर से सब लोग आए हुए हैं, ससुराल से आए हुए हैं, मेके से आए हुए हैं, सब लोग तो बस वो तैयारी में हम लगे हुए हैं काम की अपनी। जी बिल्कुल, काफ़ी मज़े के पकवान बनाए हैं, बीफ, मटन और जो है वो दीगर लवाजमात जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे हैं कुछ यहाँ पर, बच्ची हैं, इनसे हम जानते हैं कि आज ईद कैसी गुजारी है। बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत मज़ा आया। सुबह ही गायें कटते हुए देखी बहुत सारी और
घर में भी बहुत अच्छी फरमाइशें कर रही हैं खाने पकाने की। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों ने जो है वो दिन में भी कुर्बानी में भी बच्चे मसरूफ रहे, उसके बाद तफरी मुकामात का रुख किया और अब जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ख़वातीन की जो ड्यूटी होती है ईद उल अज़हा के रोज़ मज़े मज़े के पकवान बनाना और घर वालों की सबकी फरमाइश का ख्याल भी रखना। ख़वातीन यहाँ पर जो है वो मज़े मज़े के पकवान बनाने में मसरूफ़ हैं। जी पेशावर की बात कर लेते हैं, जहां सब रिश्तेदार मिलकर बारबेक्यू के खूब मजे उड़ा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे काशा नवान इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी काशावन, पेशावरियों की ईद कैसी गुजर रही है? जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं पेशावर में। अब बड़ी ईद हो और बारबेक्यू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पेशावरी जो हैं सारा दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करके और अपने और गरीबों में, अपने रिश्तेदारों और गरीबों में गोश्त बांटने के बाद अब इस टाइम पर अपनी पेट पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर एक फैमिली है, मैं उनके साथ मौजूद हूँ, जो गर्मा गर्म टिक्के बना रहे हैं और उसके साथ एक यहाँ की रिवायती एक डिश है रोश, वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि उनसे बात करूँ। भाईजान क्या हाल है आपका, कैसे हैं? ये बताएं कि आज आप आपस में ही सारे जमा हुए हैं और ईद मना रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये सुन्नत इब्राहिमी है और ये हमारे जो बच्चे यहाँ पर बैठे हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारा एक तरीका है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरीका है, वही इसको सिखा रहे हैं। और हमारे ये जो फैमिली के लोग हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम ये खुशियाँ मना रहे हैं, बस इस वजह से। अच्छा, तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ईद है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बारबेक्यू किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करूँ, वो भी इन खुशियों में इनके साथ बराबर के शरीक हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है, मैं उससे पूछूँ, जी बेटा क्या कहना चाहोगी? ईद मना रहे, टीके बना रहे और खुशियाँ मना रहे। अच्छा, तो जी देखें, जैसे कि ये छोटी सी बच्ची थी, ये भी इस गैदरिंग में मुकम्मल इन्वॉल्व है और इसका ये कहना है कि ईद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और बारबेक्यू के टिक्के बना रहे हैं, खुद भी खाएंगे, रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे और इस ईद को एंजॉय करेंगे। जी हाँ, खाने पीने का सिलसिला जारी है। सारा दिन चटपटे पकवान खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। जिंदा दिलाने लाहौर आइसक्रीम के मजे उड़ा रहे हैं और आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच हमें तफसीलात बता रहे हैं। मैं यहाँ बीडन रोड के एक मशहूर ब्रांड की शॉप में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर किस्म के जायके की आइसक्रीमें मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि बड़े ही लाहौर के एक दूर दराज इलाके से यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आज क्या ख़ास बात है कि वो इतनी दूर से चल के यहाँ पर आइसक्रीम खाने आई हैं। जी मैडम बताइएगा कि आज ईद तो है ही, तो क्या कोई ख़ास बात है कि आज आप यहाँ पर बीडन रोड पर आइसक्रीम खाने आई हैं? हाँ जी, नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करा तो मीठा खाने के लिए। तो आप क्या कहीं दूर से आई हैं, कहाँ से आई हैं? हम मुगलपुरा से ही आए हैं। जी आपने सुना कि ये खातून मुगलपुरा से यहाँ पर बीडन रोड पे आई हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर चूँकि आइसक्रीम भी बड़ी टेस्टी होती है और नमकीन खाने के बाद उनका ये जी चाह रहा था कि वो मीठा खाएं, तो इसीलिए वो यहाँ पर बीडन रोड पर एक मशहूर ब्रांड की आइसक्रीम खाने आई हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि बीडन रोड की पर यहाँ पर 2-3 आइसक्रीम की बड़ी मशहूर शॉप्स हैं और ये ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर से बाहर भी अपने बहुत अच्छे टेस्ट और जायके के लिए पहचानी जाती हैं और बड़ी मशहूर हैं। जी मुल्क भर में सियासतदानों ने ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम से मनाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई कौम कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने पाकिस्तान की कामयाबी और खुशहाली के लिए दुआ की। उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, राना सनाउल्लाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ईद के मौके पर मुल्क को तरक्की देने का अज़्म किया। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर वज़ीर आज़म का पैगाम। इमरान खान ने कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी का दर्ज देती है, कोई कौम कुर्बानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने भी कौम के नाम पैगाम दिया। उनका कहना था कि अल्लाह पाकिस्तान को कामयाबियां और खुशहाली अता फरमाए, सब नई क़यादत के साए तले मुत्तहद हो जाएं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद रेस कोर्स ग्राउंड में अदा की। उन्होंने दारुल शफ़क़त का भी दौरा किया और यतीम बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। वजीर आला मेंटल अस्पताल भी गए और मरीजों में ईदी तकसीम की। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया में नमाज अदा की। साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज पढ़ी।
वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मेयर कराची वसीम अख्तर ने पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। बड़ी खबर है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की है। मिना में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को गुज़िश्ता रात इशाइया भी दिया और हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हिमायत का यकीन दिलाया। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सबसे बड़ा एहतजाज श्रीनगर के ईदगाह मैदान में हुआ। भारतीय फौज गोलियां और शल बरसाती रही, जबकि नौजवान पाकिस्तानी परचम लहराते रहे। मकबूजा कश्मीर में नमाज ईद के बाद अवाम के बड़े पैमाने पर एहतजाज। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर के ईदगाह मैदान में हुआ। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने भी अवाम से खिताब किया। ये एहतजाज थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, जब तक कि हमें अपना हक नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के हक में नारे लगे तो काबिज फौज आपे से बाहर हो गई। कश्मीरियों पर आंसू गैस के शेल और पैलेट गन से गोलियां बरसा दी। कश्मीरी नौजवानों ने फौज पर पथराव किया और मैदान में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। भारतीय जबर की सियारात जारी है और कश्मीरी अवाम अंधेरी रात के खात्मे की जद्दोजहद में मसरूफ है। जल्द सवेरा होने वाला है, कश्मीर और पाकिस्तान एक साथ होंगे। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइन है। ईद के रोज अपने ट्वीट में मीर वाइस ने कहा कि इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कश्मीरी अवाम और लीडरशिप की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मुस्बत रवैये का मुजाहरा करेंगे। खबरें और हैं शामिल इस ब्रेक में। खानदान के दीगर अफराद शहबाज शरीफ के हमराह थे। तमाम अहले खाना को मुलाकात की खुसूसी इजाज़त दी गई है। शहबाज शरीफ ने अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वालिदा शमीम अख्तर समेत खानदान के दीगर अफराद शहबाज शरीफ के हमराह थे और तमाम अहले खाना को मुलाकात की खुसूसी इजाज़त दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने करप्ट अनासिर को दो टोक पैगाम दे दिया है। कहा कि उनका मकसद सिर्फ काम काम और काम है। करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, ना खुद करप्शन करेंगे ना किसी और को करने देंगे। जिसे करप्शन करनी है वो पंजाब से बाहर निकल जाए। हमारा मकसद सिर्फ काम है, काम काम और काम बस। और खान साहब के विजन के मुताबिक हमने उनके विजन को इम्प्लीमेंट करना है। पूरे निज़ाम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। ये तब्दीली लानी है, इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। न करेंगे न करने देंगे। जो करेगा वो अपनी जगह फिर ढूंढ ले किसी और सूबे में, किसी और जगह। यहाँ जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह उसको। हमने जो काम करना होगा हम नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे, जहाँ कौमी मफाद होगा। हमने नुकसान नहीं करना। ये नहीं करना कि फलाने ने शुरू किया है, अगर ठीक काम है तो हम उसको बंद कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत कैट को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। CDA के मामलात मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान देखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद के स्कूल्स और अस्पताल के मामलात भी बाबर अवान के सुपुर्द कर दिए गए हैं। बाबर अवान ने कहा कि इस्लामाबाद को सरसब्ज़ व शादाब और मिसाली शहर बनाएंगे। शेख रशीद अहमद ने PTI को पीपल्स पार्टी से राब्ते का मशवरा दे दिया। आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू में वज़ीर रेलवे का कहना था कि PTI को बैकडोर चैनल से राब्ता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ज़्यादातर चीज़ों को खुद देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ को चलाना मुल्क चलाने से ज़्यादा मुश्किल है। जिसने PTI को चला लिया वो मुल्क भी चला लेगा। उन्होंने रेलवे के तमाम रेस्ट हाउसेस को फ़रोख्त करने का भी ऐलान कर दिया। देखें जी, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। 10 करोड़ नौजवानों का एक समुंदर है जिसकी कमिटमेंट है। जो इमरान खान ने कहा 100% अगर ना ले सके 15 से 20% भी हमने डिलीवर कर दिया तो कौम हमारे साथ खड़ी रहेगी और खड़ी हो जाएगी। हमें थर्ड डोर बैक डोर चैनल पे पीपल्स पार्टी से रब्ता करना चाहिए। हाईएस्ट लेवल आपके राब्ते हो नहीं चुके? इतने गहरे नहीं हुए जितने गहरे होने चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जहांगीर तरीन का भी फैसला है जी सुप्रीम कोर्ट में। जब केस आएगा तो फिर इस पर तबसरा किया जाएगा।
खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ